आज हम देखेंगे कि चीन ने कदम दर कदम भारत की जमीन पर कैसे कब्जा किया। लॉन्गजू से गलवान तक, अरुणाचल से लद्दाख तक। इस वीडियो में मैंने 2 जून की एनडीटीवी रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल किया है ताकि आपको इस विषय की गहराई और पृष्ठभूमि बेहतर तरीके से समझ आ सके। अगर आप पूरी ओरिजिनल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे जरूर देखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत टाइमलाइन के साथ। Frontier along Arunachal Pradesh that India does not control. Now that's important, I'll explain it all. The area does, however, fall within the McMahon line. That's the historic boundary shown by the Survey of India on our official maps. Now, India and China have significant differences in perception over the coordinates of the boundary line in this area. The area which lies in Arunachal Pradesh's Upper Subansiri district came into sharp focus earlier this week when a welfare society representing the Na tribal community in the district submitted a memorandum to the Deputy Commissioner alleging that the Chinese army has occupied parts of their ancestral grazing, hunting and agricultural lands over the last many years. So what is this all about? We decided to investigate with the highest resolution commercially available satellite imagery, and this is what my report is this evening. So let's start out with the very first image. Now this is the broad area that we are talking about. You can see the marking of Arunachal Pradesh. The lines over here conform to the Survey of India lines, in other words the official line of India. And where it says Chinese construction and you see the red marker, that is the area that we are going to be talking about. It is an area that lies within India's interpretation officially of Indian territory, but has in effect been controlled by China since 1959. I'll come to that in a moment. But let's zoom in and go to the next image, which gives you an idea of what exactly it is that we are trying to talk about. So we've zoomed in over here. The red line that you see is the boundary. Again, it's the SOI, or the Surveyor of India's boundary, the official boundary of India. Within this area, and this is in the Upper Subansiri district, in 2021, I reported first about the presence of a Chinese village. Since then, new satellite images that we have indicate that the Chinese have fairly recently constructed, this is where that first village was, okay? They've constructed this road across this area, in this area which they've occupied since 1959. India used to occupy it before that. Then there was a clash which took place before the 62 war, and since then they've occupied this area. After constructing this Chinese village and going down this valley, right? And they are also further down, but in the context of this report, it's the road which is of concern. It goes and westwards, and they have now constructed another Chinese village that lies narrowly across the international boundary as we recognize it. The boundary line may be thick, so a part of it might actually be in India as well. This road which they have constructed connects to this area and also in fact moves south. So the distance is 9.42 kilometers from the 2021 Chinese village to the 2026 Chinese village, which we'll see soon. That's 9.42 kilometers. Now, somewhere below this, right, and we don't know where, is the line of actual control, or that is the line which the Indian Army controls and defends. नमस्ते दोस्तों, मैं सेवियो लसराडो, लॉजिकल हिस्ट्री भारत का होस्ट। सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह को सलाम और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 1962 में मेजर शैतान सिंह और उनकी सी कंपनी ने रेजांगला में अभूतपूर्व वीरता दिखाते हुए अपनी आखिरी सांस तक चीनी सेना के खिलाफ अकेले संघर्ष किया। इस वीरतापूर्ण युद्ध में 114 वीरों के बलिदान को चीनी सेना आज तक नहीं भूल पाई है। चीनी सेना जमीन छीनने के लिए ठगों की तरह लड़ रही थी, जबकि मेजर शैतान सिंह अपनी मातृभूमि और उसकी इज्जत बचाने के लिए लड़े थे। उनकी लड़ाई ऐसी थी कि चीनी यह सोच भी नहीं सकते थे कि एक आदमी पूरी चीनी सेना को रोक सकता है। अगर पूरी भारतीय सेना ऐसे लड़े तो क्या होगा? इससे उनकी आमने सामने आर्मी टू आर्मी लड़ने की हिम्मत टूट गई। उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला, धीरे धीरे जमीन छीनना। फिर आया गलवान, जहां उन्हें भारी सबक सिखाया गया। इसलिए आज भी वे धीरे धीरे स्लाइसिंग टुकड़ों में कब्जा कर रहे हैं ताकि किसी का ध्यान न जाए। इसलिए आज हम पूरा इतिहास देखेंगे और अपने भारतीय भाइयों को अलर्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हर यूट्यूबर इस पर वीडियो बनाए और जागरूकता फैलाए। यह सिर्फ व्यूज के लिए नहीं है, यह जागरूकता के लिए है।
एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते मैं आज अपने मंच से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से यह पुरजोर अपील करता हूं। अब समय आ गया है कि इस मुद्दे पर अत्यंत कड़ा और ठोस एक्शन लिया जाए। है कि चीन कूटनीति की भाषा नहीं समझता और समझौतों की शालीनता को हमारी कमजोरी मानने की भूल करता है। उनकी धोखेबाजी का जवाब केवल और केवल अटूट शक्ति से ही दिया जा सकता है। दुख के साथ कहना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत को इस मुद्दे से सख्ती से निपटना चाहिए और चीनियों को उनके मुख्य भूभाग मेनलैंड तक पीछे धकेलना चाहिए, क्योंकि चाइनीज लोंगजू सेक्टर अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। चलिए शुरू से देखते हैं पूरा टाइमलाइन। 1954 धोखे की शुरुआत 29 अप्रैल 1954 नेहरू जी और झो एनलाई ने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया। इंडिया ने तिब्बत को तिब्बत रीजन ऑफ चाइना मान लिया। चाइना ने कहा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, लेकिन चाइना ने एक बात छुपाया था, वो बॉर्डर को कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैकमाहोन लाइन को वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म बोलता था और अक्साई चीन में चुपके से रोड बना रहा था। 1959 पहला छुरा, मार्च 1959 दलाई लामा भारत आए, चाइना गुस्सा हो गया। अगस्त 1959 लोंगजू इंसिडेंट अरुणाचल, चाइनीज पीएलए ने इंडियन असम राइफल्स पोस्ट पर हमला किया। भारतीय सैनिकों को पीछे हटना पड़ा और तब से लोंगजू का यह इलाका चीन के अवैध कब्जे में है और अफसोस आज भी है। इसके ठीक बाद आया अक्टूबर 1959 का वो काला महीना, जगह थी लद्दाख का कोंकणा पास। 1959 के श्वेत पत्र व्हाइट पेपर्स, भारत सरकार ने आधिकारिक श्वेत पत्र व्हाइट पेपर्स प्रकाशित किए, जिनमें चीन के साथ हुए सभी विवादों, हिंसक घटनाओं और राजनयिक पत्राचार, डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस का पूरा दस्तावेज दर्ज था। इन श्वेत पत्रों ने पूरी दुनिया और भारतीय जनता के सामने यह सच लाकर रख दिया कि चीन का आक्रामक रुख कितना गहरा और खतरनाक था। 1959-1960 नेहरू झो पत्राचार, नेहरू झो एक्सचेंजेस। चीन के प्रधानमंत्री झो एनलाई ने पत्रों के जरिए भारत के सामने एक पैकेज डील का प्रस्ताव रखा। चीन अक्साई चीन को अपने पास रखना चाहता था और बदले में भारत से अरुणाचल प्रदेश तत्कालीन नेफा मांग रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस सौदेबाजी को साफ मना कर दिया और देश की संप्रभुता से समझौता करने से इनकार कर दिया। 1960 का दिल्ली शिखर सम्मेलन। अप्रैल 1960 में दिल्ली में एक बेहद महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुआ। चीनी प्रधानमंत्री झो एनलाई ने भारत के सामने वही पैकेज डील दोबारा रखी, लेकिन नेहरू और उनकी कैबिनेट ने इस सौदेबाजी को पूरी तरह खारिज कर दिया। नतीजतन यह शिखर सम्मेलन पूरी तरह विफल रहा। कई इतिहासकार इसे एक ऐसा गंवाया हुआ अवसर मानते हैं जो शायद 1962 के भयानक युद्ध को रोक सकता था। 1962 का भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 तक यह भयानक युद्ध चला। चीन ने विश्वासघात करते हुए भारत के दोनों सेक्टर्स नेफा, अरुणाचल और लद्दाख पर एक साथ हमला बोल दिया। इसी युद्ध के दौरान रेजांगला की बर्फीली चोटियों पर मेजर शैतान सिंह और उनकी सी कंपनी के 120 जांबाजों ने वो हीरोइक लास्ट स्टैंड किया, जिसने भारतीय सैन्य इतिहास में वीरता की एक अमर गाथा लिख दी। मेजर शैतान सिंह का नेतृत्व। मेजर शैतान सिंह ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपनी कंपनी का नेतृत्व जारी रखा। उन्होंने मरते दम तक अपने जवानों का मनोबल टूटने नहीं दिया और अपने मिशन को पूरा किया। उनके इसी अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1963 में एक रिपोर्ट आई जिसमें फॉरवर्ड पॉलिसी को सैन्य दृष्टि से अव्यावहारिक बताया गया था। इस रिपोर्ट ने उपकरणों की कमी, खुफिया तंत्र की विफलता और कमान संबंधी समस्याओं को उजागर किया था। भारत ने 1962 के युद्ध से कई महत्वपूर्ण सबक सीखे। इसके बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विशेष सैन्य प्रशिक्षण, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे का विकास, खुफिया तंत्र को मजबूत करना और सेना का आधुनिकीकरण शुरू किया गया। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने सीमावर्ती सड़कों के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। अटल टनल, सेला टनल और डीएसडीबीओ रोड, दारबुक शोक, दौलत बेग ओल्डी सड़क जैसी परियोजनाएं इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन परियोजनाओं में एनएटीएम, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, मॉड्यूलर पुल, जियोसिंथेटिक्स, ड्रोन सर्वे, लिडार, लाइडियार और जीआईएस जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया। आज ड्रोन का उपयोग योजना बनाने, निर्माण कार्य की निगरानी और आपदा आकलन के लिए व्यापक रूप से किया जा रहा है। यह भारत की आधुनिक रक्षा क्षमता और निरोधक शक्ति को भी मजबूत करता है। 15 से 16 जून 2020 की रात लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच कई दशकों बाद